Question 13. Check. The doubts are from GOC images which you sent, right? Yes. ओके इसमें फर्स्ट वाला तो क्वेश्चन नंबर 54 दिखा रहा है, जेई मीन्स 2014 क्वेश्चन. Uh, Once. Should I write the question instead? Fast structure. The question is about the basic strength of amines in aqueous solutions. Okay, so option A was given this secondary amine, primary amine, then tertiary amine, then aniline. So in basic character, what is the first thing we'll see? Localization or delocalization. This is localized, 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 delocalized. So definitely all these three are more basic than the last one. Then we'll see within the aqueous solution, all of them are localized, but in the aqueous solution, we have seen the case is different. In aqueous solution, it is 2 degree, greater than 1 degree, greater than 3 degree, greater than ammonia. Right? This is what happens when R is methane, that is CH3. And it is 2 degree, greater than 3 degree, greater than 1 degree, greater than NH3. In case if R is C2H5. Only these two are there for your syllabus. You should know this, how it is varying. Okay, better. Yes. Based on that, this is the answer. Okay. Got it. Next. Next question is Uh, question 26. Once. The question said longest CO bond. Anna, shall we go ahead? Yes, sir. I think you're logged in with two IDs. You're getting an echo. एक मिनट एक One मिनट second. The other one is muted. No, but it is still coming. Then I'll log out Log off. from it. No. Yeah, no, it's fine. No, it's fine. Yes. Right, we are supposed to find longest C double bond or CO bond here. Four options were given. HC double bond O, F is given. HC double bond O, NH2 is given. And HC double bond O, OH is given. Okay, बेटा. Basically ये सारे के सारे रेजोनेंस कर रहे हैं, तो बेस्ट रेजोनेंस ये देगा.
because that is better donating out of A, B, C, D. Okay. Since this is going to be much better donating here, so which means यहाँ पर single bond character सबसे best develop होगा. So this will be the longest. Got it? 48. The correct order of stability of the radicals is, so there are 5 radicals given. So there are these 5 radicals given where there is dot here, double bond and dot here, and double bond and dot here, double bond here and dot here, and dot here. Okay. Now let us put what are we calling this? This is a 2-degree radical. This is a allylic radical. This is a vinylic radical. Right. So this is a 2-degree plus. This is allylic plus better resonance. Allylic plus more resonance. And finally, this is phenylic. This is phenylic group. Okay. So the fourth one will be most. So the most 1, 2, 3, 4, 5. So fourth is the best. It has the most amount of resonance. Then second is the best. Then first is the best. Then between vinylic and phenylic, always vinylic is better than phenylic, because here in the phenylic it has to be in sp2 hybridized orbital. Here it can be in sp hybridized orbital. Got that, beta? Yes, sir. Next. So should I send you the pictures again, because I think there's been some error while sending, because मेरे में वो order में नहीं है जो आपके order में. Okay, send it. Resend once again. सब एक ही बार भेजो अभी. मैं फिर से ओपन करता हूँ. Okay, as per the order, what you have sent, the first question is about 12, 13, 14. This one? Yeah. Which question should I discuss here? 13? From that, yes. Only the first and the fourth option. First and the fourth option. Okay. So in this 13th one, if you check out, we have nitrogen with CF3, CF3, and CF3, right? While if you see that here on pyrrole form, this is the pyrrole form. Now H, right? No matter how much withdrawing groups these have, this would at least be localized. This is localized, right? While here it is completely delocalized. Delocalized into aromatic form. Correct. So that makes it least amount of basic character. This would be more basic. Got it? Yes. Then the best option here, let me check.
3, then 2, then decreasing order of basicity. Let me see the value because the options aren't matching there. Third, second, third and second, third, second. Just a minute. PKB of you better have this list beta for reference. I'm just sending you right now. This has complete data. Sometimes it's just to recheck. This is a complete IUPAC data only. 1 minute. वैल्यू पे एक बार फिर से रीचेक कर लेना, उसमें है. नेक्स्ट, which one? 14? No, क्वेश्चन नंबर 1 में A C D यही है. No, is that the one? Yes, sir. Question number AC. First में arrange the following in decreasing order of basic strengths. देखो, first तो in A case, right, any R4 plus and OH minus, this is most basic because ये already ionic form में है, it can give away OH minus most easily. Got it? So therefore, this would be the best base. It is like NaOH beta, ionically bonded, so it can give OH minus very easily. So R4, N plus and OH minus, that will be the most basic. Then 2, 3 and 4 में आपको क्या check करना है? We know that order should be on the basis of, and nothing is mentioned, always take aqueous solution. So then that is 2 degree, then 3 degree, then 1 degree. This is for R being ethyl, R being C2H5. ठीक है, ये हो गया उसका ऑर्डर. नेक्स्ट C केस, CH3O minus, CH3O minus है, CH3NH minus है, CH3CO minus है और CH3 minus है, right? Again, this is based on the pK values. If you can see, this is coming from CH4, whose pK value is least. मतलब ये बहुत strong acid, strong base है. So if I write this as 1, 2, 3, 4, then 4 is the best. Then compare to 2, then compare to 1, compare to 3. This will be the order. Let us check D now.
We have been given aniline, NH2, and along with that we have got NMe here and Me here. Next we have NMe twice, NH2, and this. Now A, B, C, D, right? Yes. ओके इसमें से आपको पहले ये देखना है कि किसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? अभी देखेंगे इसमें. तो फर्स्ट यू विल सी इन द बी पार्ट, राइट, व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू SIR इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करेगा ही नहीं, ये पूरा ही घूम के रह जाएगा, राइट? कंप्लीटली लोकलाइज्ड रहेगा. दिस इज डीलोकलाइज्ड, this is completely localized, this is delocalized, this is delocalized. ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर है क्यों delocalized है? बिकॉज ऑफ SIR effect. These two are bulky groups, they'll repel with each other. Yes. So B is the most basic one, right? Then if you see C is donating the electrons, but at the same time it has at least two methyl groups on it. Then Yes. A, then D because of ortho effect. सर सेकंड में भी SIP इफेक्ट नहीं लगेगा. SIP तभी लगाएंगे तब रेजोनेंस हो रहा होता है. अगर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो SIP नहीं लेंगे. अच्छा. नहीं सर, बट SIP में we say that H plus does not come because there is a lot of steric conjunction. No, we don't say that. We say that प्रोटोनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बनने के बाद, सपोज ये ऐसा है, अगर ये बन गया NH3 प्लस, ठीक है, बनने के बाद दोनों में रिपल्शन होगा, करेक्ट? दैट इज व्हाट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन. सो बनने के लिए पहले H प्लस एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना. तो इसमें H प्लस काफी इजीली एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, वाइल यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है इनिशियली, तो उसका एबिलिटी टू एक्सेप्ट इज लेस. फिफ्थ में ऑप्शन C एंड D. देखो ये भी टर्शियरी है प्राइस N, ये भी टर्शियरी है और यहाँ पर भी टर्शियरी है, ऐसे, राइट? अभी ये दोनों टर्शियरी ग्रुप में से ये ब्रिज्ड है ना बेटा, ठीक है? If you see this is the one which is bridged, ये कौन सा ब्रिज्ड है? देखो ये यहाँ से N, फिर यहाँ से ऐसे N, ऐसे कनेक्टेड है, राइट? ऐसे. So if you see the bridge size 1, 2, 3, 4, 5, 6 में बढ़ रही है. Okay. So already nitrogen is under strain. Here there is no strain at all. Clear? So when it is under strain, it will be accepting electrons, accepting proton at a faster rate compared to that of nitrogen without strain. So पहले हम लोग को strain analysis पे ही check करना है. So that's why this will be more basic. Okay. So whenever you have bridged carbon, I mean bridged nitrogen, as well as open chain, हमेशा bridge को ज़्यादा preference. नेक्स्ट में ऑप्शन B एंड C, as in diagram B and C. Seventh C and D. No, the diagram B and C. Like C and D option में A is similar, but B and C में clash में. कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ उसी क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन 7. क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ. Diagram B and C. Diagram B and C. Okay. Which of the following are more base of compounds? Okay, most basic in B and most basic in C. B has
secondary amine like this, then like this. Okay. राइट, ये बताया ना मैंने, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, बट इसमें स्ट्रेन, इसमें ब्रिज्ड है तो थोड़ा सा स्ट्रेन रहेगा, सो दिस इज बेटर बेसिक. नेक्स्ट सी में NH2 सी पे सेकंड वाला हो जाएगा, इक्विवेलेंट. राइट, ये तो यूरिया है, इसमें तो बहुत ही वीक अमाउंट ऑफ बेसिक कैरेक्टर है क्योंकि लोन पेयर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है दोनों के दोनों. उसके नेक्स्ट वाला तो गोनाडाइन स्ट्रक्चर है. ठीक है, गोनाडाइन स्ट्रक्चर आपको पता है क्या करना. दिस इज मोस्ट बेसिक. नेक्स्ट 17. सर 16 का मतलब ही नहीं समझा. 16th, which of the following has minimum heat of dissociation? Okay, मतलब इसमें जिसका बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है, जिसका भी बॉन्ड स्ट्रांग है उसको मैक्सिमम हीट ऑफ डिसोसिएशन लगेगा, जिसका बॉन्ड वीक है उसमें मिनिमम लगेगा. बराबर. देखो, मैक्सिमम तब होगा, मिनिमम हीट तब होगा तब ये जो बेस है जो डोनेट कर रहा है राइस n, ये जो डोनेट कर रहा है ये मोर बेसिक होना चाहिए, ये मोर बेसिक होना चाहिए, और जो एक्सेप्ट कर रहा है बोरॉन, दैट हैज टू बी, सॉरी एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरॉन, बोरॉन हैज टू बी मोर एसिडिक. तो बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा. अच्छा, वो तो अभी देखना है कि हम लोग को वीक बॉन्ड कौन सा है. राइट, मिनिमम हीट ऑफ डिसोसिएशन. देखो, बोरॉन में बैक बॉन्डिंग होता है, इससे अगर बैक बॉन्डिंग को रिड्यूस कर दिया जाए, ये बैक बॉन्डिंग को रिड्यूस कर दिया जाए तो वो वीक एसिड बनते जाएगा. राइट, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड बनते जाएगा, बाय मिस्टेक. ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा. तो यहाँ पर ये सबसे वीकेस्ट एसिड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी, विथ एक CH3 रिप्लेस किया, 2 फ्लोरीन रखा, या बी विथ 2 CH3 रिप्लेस किया, 1 फ्लोरीन रखा, या बी सारे CH3 सारे फ्लोरीन को रिप्लेस किया. ऐसे होता है एसिडिक ऑर्डर. ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में बॉन्ड होता तो वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता और एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होता तोड़ने के लिए. इन दोनों के बीच में बॉन्ड है तो बॉन्ड वीक होगा और तोड़ना सबसे इजी है. तो आंसर ए होना चाहिए. नेक्स्ट 17. करेक्ट ऑर्डर. ओके, ए में देखना बेटा, ए में pyridine है localized. Yes. Okay. Pyridine, I'll just write it this way. Pyridine is localized. Correct. Then pyrrole is delocalized. Yes. Okay. And aromatic. और हाँ क्या बेटा, delocalized and प्लस एरोमेटिक है. और थर्ड में भी एरोमेटिक है. ओके, वो भी पायरोल जैसा ही है, प्लस एरोमेटिक. सर थर्ड में तो वो दूसरा नाइट्रोजन होगा ना जो डबल बॉन्ड हाँ, से मैं दोनों बता रहा हूँ, एक पायरोल एरोमेटिक है और इसमें और एक है लोकलाइज्ड. राइट. Yes. और ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा गोनाडाइन जैसा दिख रहा है ना, दैट इज अपीयरिंग लाइक गोनाडाइन फॉर्म. सर कैसे नहीं समझ ये ऐसा है ना बेटा, ये लोकलाइज्ड है तो यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो हमको एक ग्रुप ऐसे बन जाएगा NH प्लस चार्ज ऑन इट, डबल बॉन्ड ऐसे, राइट. और ये जैसे इधर होगे तो ये इधर चला जाएगा. ओके. ओके समझ गया. It will be 312. It will be 312. नहीं बेटा, इसमें एक छोटा सा गड़बड़ है हिस्टाडाइन में. एक मिनट,
द नेम इज इमिडाजोल। ये इमिडाजोल होता है जिसका फर्स्ट पीके के 6.9 है। एक मिनट, इन कंपैरिजन विद पिरिडीन, पिरिडीन 5.2 है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बेस्ड है, पिरिडीन और ये दोनों कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, करेक्ट। यहाँ पे ग्रेनेडेन होने के बावजूद प्रॉब्लम क्या है ना, ये एक इनिशियली एरोमेटिक रिंग था, तो ये लोन पेयर है ना अवेलेबल नहीं होगा उसको सपोर्ट करने के लिए। Are you getting it? Okay. तो उसको गुनेडाइन फॉर्म में सपोर्ट करने के लिए लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता है। सो इसका पीके वैल्यू मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। इसका पीके वैल्यू गिवन है 6.9 और पिरिडीन का पीके वैल्यू गिवन है पिरिडीनियम आयन का पीके वैल्यू गिवन है 5.2, करेक्ट। मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है। Yes. ये ज़्यादा एसिडिक है, मतलब इसका बेस रिलेटिवली वीक है। ये कम एसिडिक है, मतलब इसका बेस रिलेटिवली स्ट्रांग है। तो यस, तो आंसर शुड बी दिस imidazole greater than pyridine greater than pyrrole। पायरोल तो सबसे वीक है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट। फिर ऑप्शन सी एंड डी अगेन। ऑप्शन सी एंड डी। सी एंड डी। The most stable structure of intermediate of arenine complex is सर नहीं हो गया ऑप्शन डी, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। correct। Next, देन फर्स्ट क्वेश्चन पूरा। decreasing order of carbocation। okay, इसमें फर्स्ट वाला विनाइलिक है, सेकंड वाला बेंजाइल है, थर्ड वाला प्राइमरी है, फोर्थ वाला बेंजाइल प्लस सेकेंडरी है बेटा। सो फोर्थ इज बेटर देन, सेकंड इज बेटर देन, थर्ड इज बेटर देन फर्स्ट वन, ठीक है। फोर्थ बेंजाइल है विथ रेजोनेंस, ठीक है। ओके। सेकंड वाले में भी बेंजाइल है विथ रेजोनेंस, बट यहाँ पे बट रेजोनेंस अगर वो थोड़ा सा रेजोनेंस में गया हाइपर। तो उसका एरोमेटिसिटी बंद हो जाएगा बेंजीन का। As in, if देखो you put cation in the aromatic in the resonance, तो उससे पूरा कितना फर्क पड़ता है वो मैं बता रहा हूँ। CH2 प्लस ये आ गया ना, ये चला जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके रेजोनेंस से इतना ही फर्क पड़ता है कि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू 3 डिग्री, बस। इससे ज्यादा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज यू speak with respect to general resonance, this is much more stable only, ठीक है। जब ये दोनों को कंपेयर करने की बारी आई, सिर्फ तभी के ओनली इन दैट केस टर्शियरी इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन बेंजाइल, दैट्स ऑल। नहीं सर, बट वो रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं क्योंकि उसका एरोमेटिसिटी पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा नहीं बेटा, जाता है। क्यों जाता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट। यहाँ पे है। हाँ, डबल बॉन्ड NH2 है, करेक्ट, क्लियर, CH। राइट। रिंग एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, बट सॉरी CH2 एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, बट ये डबल बॉन्डेड CH2 उसको होने नहीं देगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर थ्रू करवाएगा ये, क्लियर। सो यहाँ पर अगर रेजोनेंस नहीं होता होता और यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होता तो ये बिल्कुल नहीं होता, बट एज यू सेड मैग्नीट्यूड इसका कम होगा। इसके लिए ना बेंजाइल फॉर्म में रेजोनेंस जरूर होता है, बेंजाइल फॉर्म में रेजोनेंस जरूर होता है, बट 3 डिग्री से रिलेटिवली वीकर होता है, करेक्ट। सो 3 डिग्री के जितने हाइपर कॉन्जुगेशन कंपेयर करोगे तो वो ज्यादा डोमिनेंट। ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन देखा होगा आपने, हम लोग हाँ, कैसे लिखेंगे, पीएच थ्राइस सी प्लस, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन पीएच ट्वाइस सी प्लस, फिर 3 डिग्री, फिर हम लोग ये लिखते हैं सी, ओके। ओके।
third or fourth diagram in question 6. थर्ड और फोर्थ, हाँ ये एक्सेप्शन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो में OH और NO2 है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ उसी कारण पैरा थोड़ा ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू ऑर्थो। यही पूछना था। हाँ सर, उसमें ही डाउट है। आई थिंक एक्सेप्शन हुई। फिर क्वेश्चन 9। करेक्ट सिर्फ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बैक बॉन्डिंग बेटा उल्टा होना चाहिए, BF3 में बेटर बैक बॉन्डिंग कंपेयर टू BCl3 में कंपेयर टू BBr3 में। यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग है, बेस्ट बैक बॉन्डिंग है। यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग है, यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग, सो देयरफॉर ये ज्यादा एसिडिक है। जितना बेटर बैक बॉन्डिंग होगा ना, मतलब उतना अच्छा बोरॉन को सपोर्ट करेगा, तो बोरॉन को रिक्वायर्ड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लाने का, सो मतलब वो लीस्ट एसिडिक हो गया ना, सो BF3 इज लीस्ट एसिडिक। इसलिए हमने सेम क्वेश्चन किया था। इन क्लोरीन, बोलो। इन क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेजोनेंस होगा, बट फ्लोरीन में नहीं होगा। नहीं, रेजोनेंस किधर से हो रहा है? बोरॉन हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, क्लोरीन तो उल्टा तो अच्छा ये नहीं। भी दे रहा है ना, उस तरफ थोड़ी जा रहा है, रिवर्स में थोड़ी जा रहा है, ये बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस है, ठीक है। वो तो तीनों ही दे रहा है, उसमें बेटर देगा फ्लोरीन बिकॉज उसका ओवरलैपिंग मच बेटर होता है। तो ऑप्शन डी बराबर है कि रॉन्ग है? ऑप्शन डी उल्टा है, गलत दिया है, BBr3 ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। सर ये नहीं समझा। क्या बेटा ये? मतलब आई अंडरस्टैंड द बैक बॉन्डिंग पार्ट, बट उसका एसिडिक एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है? इट इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट बेटा। यस। अगर उसको ऑलरेडी किसी से सपोर्ट, इंटरनली इसको सपोर्ट मिल ही रहा है तीनों फ्लोरीन से, डज बोरॉन हैव ए नीड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड? नो। नो, व्हिच मींस इट इज लेस एसिडिक। व्हाइल बोरॉन के साथ जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है वो बहुत वीक हो रहा है, मतलब उसका बोरॉन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है ब्रोमीन, इसके लिए बोरॉन विल बी इन द नीड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, इट इज मोर एसिड। सर क्वेश्चन 10 में वो फर्स्ट वाले डायग्राम में व्हिच इज लेबल्ड x, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। फर्स्ट वाले कौन से? हाँ बराबर। व्हिच इज लेबल्ड x, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिनना है कि इग्नोर करना है? कम अगेन। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिनना है कि इग्नोर करना है, बिकॉज देयर इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज वेरी क्लोज बाय। हाँ इसमें देखना है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेना है, जैसे Z और X की कंपैरिजन में Z ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू X। सेट ज्यादा है। ओके। तो ऑप्शन ऐसे ही आएगा, Z देन X देन Y देन W। 19 के थर्ड डायग्राम में उसमें एसआईआर इफेक्ट होगा कि नहीं, बिकॉज लीनियर मॉलिक्यूल। थर्ड डायग्राम में, हाँ थर्ड डायग्राम में मतलब C वाला। हाँ। OH with COH with 2OH। वो तो सबसे बेस्ट होता है, उसमें तो सबसे बेस्ट SIR इफेक्ट हो रहा है, सॉरी सबसे बेस्ट ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। ऑर्थो इफेक्ट दोनों के कारण होता है ना बेटा, एक SIR के, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, ये ऐसा है C ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डेल्टा नेगेटिव O एंड H, O एंड H, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगली हो रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। ओके। तो इसके चक्कर में इसका मतलब ये काफी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, तो ये सबसे बेटर है। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड में आप कंपेयर करोगे, इंट्रा इज ऑलवेज बेटर देन SIR इफेक्ट,
सो सी देन डी देन बी देन ए, ये होगा ऑर्डर। सारे ऑर्थो इफेक्ट सी और डी में बेटर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ बी एंड ए। बट अगर COH के जगह कोई और मॉलिक्यूल होता तो वो लाइक OH ऑर्थो इफेक्ट होता। ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ दोनों केसेस में देखेंगे, COH और एनिलीन, बस बाकी में ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखेंगे। फिर क्वेश्चन 20 कौन सा? यूज रेजोनेंस आर्गुमेंट, ये वाला। हाँ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी वैल्यू बेस्ड है बेटा, ये क्वेश्चन भी वैल्यू बेस्ड है। इसमें पाया गया है कि ये OH यहाँ पर Cl और OH और CF3 OH और F है ना, तो इसमें आई थिंक ये 8.9 है, 9.1 है, राइट, और ये 8.8 है, बस ये एसिडिक उसी पे डिपेंडेंट है वैल्यू पे। CF3 इज मच मोर स्ट्रांगली विड्रॉइंग कंपेयर टू Cl कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बैक बॉन्डिंग आ सकता है, मतलब ये रेजोनेंस एक्सटेंडेड रेजोनेंस दे सकता है, बट यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है, बट यहाँ पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। सो हियर इट विल अंडरगो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन 27 का A and B पार्ट। मोर सॉल्युबल, ओके। जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, बस उतना ही। देखो यहाँ पर ये ग्रुप गिवन है, डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे N माइनस होगा तो इस तरफ भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इस तरफ भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, वाइल यहाँ पे डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O NH, राइट। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस N माइनस है, तो N माइनस यहाँ पर भी रेजोनेंस, यहाँ पर भी रेजोनेंस दे रहा है, बट ये रेजोनेंस बेटर होगा क्योंकि ये दोनों तरफ सल्फाइड को हेल्प करेगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आएंगे, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। जो ज्यादा एसिडिक मतलब वो ज्यादा सॉल्युबल, ओके। फिर क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी, वो OH और COH, वो नहीं हो गया, समझ गया, वो हाइपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर क्वेश्चन 5 में भी वही गड़बड़, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बेटा? उसके बाद वाले फोटो में बेंजोइक, इसमें कंपैरिजन कर। हाँ हाँ, उसके बाद सेवेंथ मतलब ये OH माइनस ये वाला। हाँ, OH माइनस CH3O माइनस एक्सप्रेस मैक्सिमम क्या था उसके बाद? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्रेसेस मैक्सिमम एसिडिक। एसिडिक तो नहीं होगा, ये एसिडिक का कंपैरिजन नहीं है। मैक्सिमम हाइड्रेशन आई गेस होगा, याद नहीं मुझे सर, फोटो रॉन्ग। मैक्सिमम हाइड्रेशन देखते हैं। OH माइनस मतलब यहाँ पे 3 लोन पेयर है, करेक्ट, और एक हाइड्रोजन है। CH3O माइनस यहाँ पर 3 लोन पेयर है। नेक्स्ट CH2OH 2 लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, और CH3 CH2 माइनस और एक है CH3 CH2OH, ऐसे बराबर। पहले इसमें आप ये देखना कि इसका ईटा वैल्यू कितना होगा। ईटा मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे 3 लोन पेयर, एक हाइड्रोजन है, सो टोटल 4 हो गया। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ये तो पता चल रहा है मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा OH माइनस में,
करेक्ट। उसके बाद ये तीनों में चेक करना, जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर वाटर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, करेक्ट। उसके बाद ये दोनों में चेक करना है तो बल्कीनेस, ये ज्यादा बल्की है, जैसे जैसे आर का ग्रुप बल्की हो जाएगा उसका हाइड्रेशन कम होते जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद CH3O माइनस, फिर CH3OH, फिर उसके बाद CH3CH2OH, ये ठीक है। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो मैक्सिमम जो होगा वो OH माइनस होगा, ये उसका ऑर्डर होगा। फिर क्वेश्चन 8 में सर, is there a quicker method to do it? Like, No, you just need to know list of pKs, that's it. okay. और उसका ऑप्शन डी कैसे सॉल्व करेंगे? D, हाँ, डी फॉर डोंकी। D सेम इज द केस बेटा, यहाँ पर देखो RNH है, R2NH है, राइट, जिसका पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 38 to 40 के बीच में होता है, अराउंड 40, लेट्स से 40 है, और ये है R माइनस Li प्लस, ठीक है। और ये रिएक्शन होने के बाद ये RH दे रहा है और ये R2NH माइनस दे रहा है, राइट। ये जो RH बन रहा है उसका पीके वैल्यू तो अराउंड 50 के करीब है, तो 40 से ये 50 दे सकता है क्या? okay. 40 से ये 50 दे सकता है। देखो सपोज इफ यू चेक आउट वीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है गिविंग अ वीक एसिड, तो ये पॉसिबल है ना, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। सारे वैसे ही चेक करने आपको। फिर क्वेश्चन 11, The decreasing order of acidic strength indicating the following sequence of the reaction. Okay. So the reaction. मतलब ये क्या बोल रहा है, एज पर द रिएक्शन जैसे दिया उसके बेसिस पे बताओ कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ओके, तो देख सेम चीज, लास्ट में वो रिएक्शन बन रहा है, मतलब ये अगर ये फाइनली बन रहा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन रहा है, करेक्ट, मतलब ये सबसे लीस्ट एसिडिक होना चाहिए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ, ये लीस्ट एसिडिक होना चाहिए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ PH3 3H, ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ क्या बेटा NH3 NH3 as compared to that of NH3, बराबर, NH3 बना। उसके बाद और वाटर कहाँ पे आया था, अच्छा वाटर इधर ही आ गया था, compared to एंड में आ that, जाएगा। compared to that of water, right, compared to that of this, compared to that of this, बस हो गया। सर वो वाटर सबसे एंड में नहीं आएगा क्योंकि NaOH और NaOH के साथ उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा सबसे एंड में। सबसे एंड में H प्लस एंड OH माइनस हो रहा है ना, तो H2O ज़्यादा एसिडिक है, बराबर, H2O ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस वन, फिर H2, फिर HCO माइनस बन रहा है, ओ इधर उल्टा लिख दिया मैंने ऑर्डर, सॉरी, एक एक करके लिखते, ये पहला वाला क्लियर है, वाई वाटर इज मोर एसिडिक। देखो यहाँ पे रिएक्शन ऐसे हो रहा है ना बेटा, H2O प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस इज गिविंग HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस OH माइनस, करेक्ट। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है इसका मतलब ये वाला लेसर एसिडिक होना चाहिए कंपेयर टू वाटर, यही लिखा मैंने। ओके हाँ, सेम वे उससे पहले वाला चेक करो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ PHC ट्रिपल बॉन्ड H, क्योंकि ये फॉरवर्ड जा रहा है। उससे पहले वाला देखो NH3 बन रहा है, ठीक है, मतलब NH3 शुड बी लेस एसिडिक देन PH थ्राइस CH, ये बनना चाहिए, राइट।
क्लियर? सर मोर एसिडिक। हाँ बेटा, ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना, क्योंकि ये रिएक्ट हो रहा है, जो रिएक्ट हो रहा है वो ज्यादा एसिडिक होता है। देखो सबसे पहले रिएक्शन वहीं से तो दिया है। नहीं सर, NH3 turns to pH phenol। नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन ऐसे दिया है, फिर से देखो, pH थ्राइस CH प्लस NH2 माइनस दिया है बेटा, दिस इज बिकमिंग pH थ्राइस C माइनस एंड NH3, ये है ना रिएक्शन, मतलब ये लीस्ट एसिडिक होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। अच्छा ओके हाँ। सो pH थ्राइस CH, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, अभी इनमें से ऑर्डर लिखना है, तो देखो वाटर सबसे ज्यादा, फिर HC ट्रिपल बॉन्ड CH ज्यादा, फिर उसके बाद pH थ्राइस CH ज्यादा, फिर उसके बाद NH3, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन 6, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी डोमेन। एक्सप्लेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ नो, एसिडिक वैल्यू। उसके ऊपर वाला। हाँ वो एसिडिक स्ट्रेंथ ना, हाँ ये तीनों, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके, ये देखना, राइट। ऐसे तो ये यहाँ पर माइनस लाना, यहाँ पर माइनस लाना और माइनस लाना, इसका स्टेबिलिटी चेक करना है, बस उतना ही। यस। Correct? तो आउट ऑफ A B C ना बेटा, देखो नॉर्मली अगर स्ट्रेट चेन में एस्टर्स होते ना, स्ट्रेट चेन में एस्टर होता, यहाँ पर एस्टर होता, तो ये लीस्ट स्टेबल कार्ब एनियन होता, क्योंकि यही वाला रेजोनेंस सबसे ज्यादा होते रहता है इसका, करेक्ट, तो इसका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, करेक्ट, ये लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। बट साइक्लिक में उसका केस अलग है बेटा, साइक्लिक एस्टर्स में इसके लोन पेयर्स कम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और ये वाला जो माइनस है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ये एक एक्सेप्शन है साइक्लिक एस्टर्स का। सो साइक्लिक एस्टर्स में ये C ज्यादा होगा कंपेयर टू B, कंपेयर टू A, ठीक है, ओनली साइक्लिक एस्टर्स दिस हैपेंस। वही स्ट्रेट चेन एस्टर्स होता है ना, तो ऑर्डर हमेशा कीटोन ज्यादा होता कंपेयर टू एस्टर्स। सर आपने बी और ए में कंपेयर कैसे किया? बी और ए में, ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हमेशा साइक्लिक ज्यादा एसिडिक, क्योंकि नॉन साइक्लिक में थोड़ा सा एंट्रोपी फैक्टर रहता है, यहाँ पे कोई एंट्रोपी फैक्टर नहीं रहेगा। सर सी और बी में, इन सी उसमें मीथेन और मीथेन भी है, तो वो ऐसा ये इफेक्ट वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा नहीं। यहाँ पे नीचे इधर, ओके, बट इन थर्ड यू, वो ऑक्सीजन जो है वो प्लस आर इफेक्ट दे सकता है हाँ बेटा उस। देता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइक्लिक में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन सपोज टू क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल है ना, इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इसको मेंटेन करना होता है अराउंड 109 डिग्रीज, ठीक है। यस। अब लेकिन ये डबल बॉन्ड अगर इन्वॉल्व हो गया तो बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा, है ना, तो वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, क्योंकि उस पर स्ट्रेन बढ़ जाता है फिर से। ओके। 6 मेंबर्ड रिंग है ना, 6 मेंबर्ड रिंग में बॉन्ड एंगल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 109 डिग्रीज, करेक्ट, तो ये इन्वॉल्वमेंट के कारण उसके ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, तो वो इन्वॉल्व ही नहीं करता है ये ज्यादा, इट ओनली हैपेंस इन साइक्लिक केसेस, वरना स्ट्रेट चेन होता तो पक्का इन्वॉल्व हो जाता और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। 7th, explain the following in the relative acidic strength. A, सर हो गया वो, ऑप्शन बी में ही डाउट था बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो गया। हाँ ओके, ठीक फिर क्वेश्चन 9 एंड 10। है, मेजर्स इतने ही हैं मुझे, फिर बाकी के बीच नहीं है बेटा, इसके बाद नहीं है, फिर से भेजो।
फिर आगे 9 और 10 ये वाला बेटा 9 10 11 ये वाला में से सिर्फ 9 और 10 9 10 ओके मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमरिक बट सोडियम मैलेट इज वीकर ओके देखो मैलिक एसिड ऐसे होता है डबल बॉन्ड ओ OH एंड OH अगर सिस फॉर्म में लिखते हैं तो ये मैलिक होता है अगर इसको ट्रांस फॉर्म में लिखते हैं डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH ये होता है फ्यूमरिक ठीक है दिस इज अ ट्रांस फॉर्म दिस इज अ सिस फॉर्म इज मैलिक ट्रांस फॉर्म इज फ्यूमरिक ठीक है यहाँ पे कैसे होगा पहले H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आएगा ना वो स्ट्रॉन्गर होगा तो ये पहले H प्लस दे देता है फिर ये जो O माइनस होगा उसके साथ ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा जो कि बेटर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है इसके लिए इन दोनों के बीच में अगर पीके कंपेयर करोगे तो पहला PK1 यू नो लेसर होगा मैलिक के लिए ये मैलिक के लिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ PK1 ऑफ फ्यूमरिक ठीक है बट सेकेंड टाइम निकालने के लिए अभी क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया इसको निकालना मुश्किल है तो इसके लिए PK2 का वैल्यू मेलिक का ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ PK2 ऑफ फ्यूमरिक रीजन क्लियर है दोनों के लिए रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है एक बार H प्लस निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंड टाइम H प्लस को निकालने के लिए अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगली एसोसिएटेड क्लियर है बेटा तो ये ऐसे होगा सो फर्स्ट H प्लस मेलिक इजीली देगा सेकेंड H प्लस फ्यूमरेट इजीली देगा 2,4 डाइटेट्रा ब्यूटाइल फिनॉल इज मच वीकर फिर देन द सोडियम मैलेट क्या होता है एक H प्लस निकालने के बाद जो बचा हुआ है वो सोडियम मैलेट है O माइनस Na ओके प्लस ऐसा है डबल बॉन्ड O OH ये ठीक है 2,4 डाइटेट्रा ब्यूटाइल फिनॉल है और 2,4 डाइटेट्रा ब्यूटाइल फ्लोराइड ऐसा है दिस वन इज मच वीकर देन द फिनॉल करेक्ट ये तो है ही क्योंकि ये स्ट्रांगली डोनेटिंग ग्रुप्स है दोनों के दोनों क्लियर हाँ हाँ बहुत ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स है ये वाले और ऊपर से एक्चुअली थोड़ा सा SIR इफेक्ट देते हैं ये वाले ग्रुप बट डोनेटिंग इफेक्ट से ही बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फिर 11th में ऑप्शन C एंड D एनिलीनियम भाई बताया 5.2 सॉरी पिरिडीनियम 5.2 एनिलीनियम वीकेस्ट है इन सब में से क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है तो उसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए सो 4 तो डी का 4 सी का 2 बी का NH4 प्लस है ना B का 1 और A का 3 ए का 3 होना चाहिए वो ज्यादा बेसिक है ए का 3 और बी का 1 सी का 2 ओके सर ये फैक्चुअल डेटा याद रखना है कि बाद के चैप्टर्स में आने वाले हैं अमाइंस में आने वाला है फिर से लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक तब आएगा पूरा
फिर 19 में ऑप्शन बी सी डी